Hello, fifth standard. How are you all? Hope you all are studying regularly. Okay, let us do with our lesson number 7 of EBS. And in this, I'll be doing with the second video today, right? First video of lesson number 7 is already done, जिसमें हमने एक्चुअल में मीनिंग देखा था सिंक एंड फ्लोट का। सिंक मतलब डूबना, फ्लोट मतलब तैरते रहना। कई चीज़ें हैं जो डूब जाती हैं, कई चीज़ें हैं जो तैरते रहती हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? सो टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, we have certain question and certain activity on page number 62. If you all have your textbook of EBS with you, please you all can take it out on page number 61. Do this experiment in group of 4 friends. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. Put each thing one by one in water and observe. Write your observation in the table given on the next page. So it's difficult in these days to meet friends. So instead of meeting 4 friends, you can do this activity individually as well. Okay? Here things are written which you have to keep in in water. तो जैसे जैसे आप पानी में ये सब चीज़ें रखोगे, वो सिंक होता है या वो फ्लोट होता है, उसके बारे में आपको टिक करना है या फिर क्रॉस करना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ योर एक्टिविटी, आपको करनी है ये एक्टिविटी। एंड आई हैव ऑल्सो डन दिस एक्टिविटी। सो अकॉर्डिंग टू माई वर्क आई हैड डन दिस। I will give you PDF of this because this exercise is also related to this work only. Okay, ये exercise भी इसी के related है, तो ये भी आप ही को करनी होगी once you complete writing this. Okay everyone? Okay, now let us go on with the next topic because here this PDF I will give you which you have to do. Okay. Now, on page number 63, is it magic? Why Aisha woke up in the morning? Ami had fever. When Aisha woke up in the morning, Ami had fever. Abu made some tea and went to give medicines to Ami. He told Aisha, "You boil eggs. Also, put some salt in the water." Aisha, he told to, sorry, Sirat, I am getting disturbed. You both of you please go on that side and play, please. Okay, sorry for disturbance. Okay, let us begin with page number 63. Is it magic? When Aisha woke up in the morning, Ami had fever. Abu made some tea and went to give medicines to Ami. He told Aisha, "You boil eggs, also put some salt in the water." Aisha took water in the pot. By mistake, she put too much salt in water. She saw the egg at the bottom of the pot come up a little and start float in water. Now, क्या हुआ? उसने जिस तरह मतलब आयशा, अबू एंड अमी, राइट? अमी को फीवर था तो अबू ने मेडिसिन दी और उसने आयशा को बोला कि एग्स को बॉईल करने के लिए तो पानी में थोड़ा नमक डालना। बट व्हाट हैपन? आयशा पुट मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, और ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से जो वो एग्स थे वो नीचे सिंक होने की वजह ऊपर फ्लोट हो रहे थे। ओके, वो ऊपर दैट इज पानी के ऊपर तैर रहे थे। टेक सम वाटर इन ग्लास, पुट अ लेमन इन इट, नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम. वर you able to float your lemon in water? सी, लेमन वाटर में डालो, ओके, वो तो फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? अगर वो सिंक करता है तो आप उस पानी में नमक डालते जाओ,
ज़्यादा नमक डालो, ज़्यादा नमक डालो, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे वो जो सिंक किया हुआ लेमन होगा वो भी ऊपर आ जाएगा और फ्लोट करने लगेगा। ओके, व्हाट डू यू थिंक लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर? बिकॉज लेमन सॉल्टी वाटर में फ्लोट कर रहा था। क्यों? बिकॉज सॉल्टी वाटर में चीज़ जो है वो इजीली सिंक नहीं होती। ओके, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इफ इट इज मोर ना, so thing remain floating on water. You can see on page number 63 one box Dead Sea. In on water one man is just lying, right? तो वो क्या है? Actually all oceans and seas have salty water. The saltiest of all is a dead sea. सी, ऐसे तो हमें पता है कि हर समुद्र में जो पानी है वो नमकीन सॉल्टी होता है, लेकिन जो डेड सी का पानी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। इमेजिन 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट इज़ 1 लीटर ऑफ वाटर में 300 ग्राम जितना सॉल्ट हो। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या आप इतना सॉल्टी वाटर टेस्ट कर पाओगे? इट वुड बी वेरी बिटर, वो बहुत ही नमकीन होगा, बहुत ही नमकीन। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी। अगर पर्सन को तैरना नहीं भी आता हो तो भी वो डेड सी में डूबेगा नहीं। शी विल फ्लोट इन वाटर, वो पानी में फ्लोट करता ही रहेगा। एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट, जैसे कि वो पानी के ऊपर सो रहा हो। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर, इसीलिए तो सॉल्टी वाटर में जो लेमन है वो सिंक होने की वजह फ्लोट कर रहा था। ओके, देन व्हाट डिजॉल्व्ड, व्हाट डिड नॉट, क्या डिजॉल्व होता है और क्या नहीं। ऑन संडे आयशा's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakarparas, that is sweet dish. Ami said, "Let me come back from the market, when I will make some for, then I will make some for you." तो अम्मी ने बोला कि मैं मार्केट जाकर आती हूँ, आकर फिर मैं आपके लिए शक्करपारा बना दूंगी। Then why don't you help me? आप क्यों मेरी हेल्प नहीं, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो मॉम बोलती है आप मेरी हेल्प कीजिए बनाने में। टेक 2 glasses ऑफ वाटर एंड पुट अ बॉल ऑफ शुगर इन इट। 2 ग्लास ऑफ वाटर में 1 बॉल शुगर का उसमें ऐड कीजिए। मिक्स इट टिल इट डिज़ोल्व, मिक्स करते रहिए जब तक पूरा शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं हो जाता। हम इट थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, देन आई विल वॉच टीवी। हामिद ने सोचा कि मैं ये पानी में शुगर मिलाने का काम जल्दी फिनिश करके फिर टीवी देखूंगा। ओके, नाउ सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिज़ोल्विंग शुगर। सी, शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए कुछ वेज बताइए। सी, आई विल टेल यू वन वे। इफ़ यू डिज़ोल्व शुगर इन वार्म वाटर, अगर आप शुगर को गर्म पानी में डिज़ोल्व करोगे तो वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर आप शुगर को ठंडे चिल्ड पानी में डिज़ोल्व करोगे, इट विल टेक सम टाइम टू डिज़ोल्व, बट इन हॉट वाटर इट विल डिज़ोल्व वेरी सून। ओके, so remaining part of the lesson we will continue in our next video. Till this, I will also give you PDF of page number 62, which you have to complete in your textbook only. Okay everyone, thank you.